Hello friends, welcome to the ASIC Institute. I hope you guys are doing well in your life. Today I'm going to tell you something about what is AutoCAD. So I'm Tej Kumar Sahu. I'm working as a senior design engineer and branch head at ASIC. I'm also an Autodesk authorized trainer. I have been working in the industry for almost 5 years. I already worked with dozens of companies and hundreds of projects related to design and drafting. So without wasting your time, let's dive into the topic. Before knowing AutoCAD, I think you guys might be know first what is CAD. CAD stands for Computer Aided Design and it refers to computers being used to assist the design process in all sorts of industries. With CAD software, it is possible to build an entire model in an imaginary space, letting you visualize properties like height, width, distance, material, or color before the model is used for particular application. It means कि CAD क्या है? CAD एक कंप्लीट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, CAD एक प्रोसेस है जिसमें आप ये उसकी लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, मटेरियल ये सारी चीज पहले विजुअलाइज करते हो, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट देते हो, फिर किसी और CAD सॉफ्टवेयर का यूज करके उसको मॉडल करते हो. लाइक अगर मैं CAD सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो सॉलिड वर्क्स, कैट या ये सारे CAD सॉफ्टवेयर होते हैं. अगर आप सिविल फील्ड से बिलोंग करते हो तो रेविट, 3ds मैप्स, गूगल स्केचअप, ये सारे कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ऑटोकैड भी उनमें से एक है जो कॉमनली सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है 3D बनाने से पहले. ऑटोकैड बेसिकली यूज किया जाता है 2D डिजाइन के लिए. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑटोकैड. AutoCAD is a computer-aided design software that architects, engineers, and construction professionals rely to create precise 2D and 3D drawings. It can use for drafting, annotation, and creating 2D design, geometry, and 3D models with solid surface and mesh objects. It is also used to automate tasks such as comparing drawings, counting, adding blocks, creating schedules, and many more. It can also use for customize with add-on apps and APIs. That means you can customize your AutoCAD software with add-on apps and APIs. You can draft any model, you can annotate any model, you can design 2D and 3D models in by using this AutoCAD software. You can also design your object or whatever you are designing in forms of solid, surface, and mesh objects. You can also create schedules, blocks. You can compare the drawing with all softwares and you can make your design even better. Now the question is, what can AutoCAD actually do? Because it comes with too many tool sets. AutoCAD rely on too many tool sets. It comes with too many tool sets that make your designing and drafting even more professional. The first tool set is आर्किटेक्चर टूल सेट. आर्किटेक्चर टूल सेट के थ्रू आप कोई भी सिविल का कंस्ट्रक्शन प्लान है, फ्लोर प्लान है, किसी होटल का फ्लोर प्लान है, किसी बिल्डिंग का फ्लोर प्लान है, वो आप इजीली डिजाइन कर सकते हो. इस टूल सेट के थ्रू आपको काफी सारे ऑब्जेक्ट्स, ब्लॉक उसमें ऑलरेडी बने बनाए मिल जाते हैं. तो आपको सिंपली उन्हें यूज करना है. जो उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं तो उसको मॉडिफिकेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. जो दूसरा टूल सेट आता है वो होता है मैकेनिकल टूल सेट. मैकेनिकल टूल सेट के थ्रू आप जितनी भी मैकेनिकल्स की चीजें हैं, लाइक आपका नट बोल्ट्स हो गए, गियर्स हो गए, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी उसमें बनी बनाई मिल जाती हैं और काफी सारी चीजें इजी हो जाती है. लाइक अगर आप कोई किसी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम पे या किसी प्रोजेक्शन सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आपको एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनानी है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो. इसमें आप इलेक्ट्रिकल टूल सेट का भी यूज कर सकते हो. इलेक्ट्रिकल टूल सेट के थ्रू आप वायरिंग हो गया, स्विचिंग हो गया, ये सारे काम इजीली कर सकते हो. इसमें आप मैप्स भी डिजाइन कर सकते हो. इवन कि आप कंप्लीट गूगल मैप को आपके AutoCAD सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करके उसका कोई भी शहर का मैप है, आपका इंडस्ट्री का मैप है, इंडस्ट्री का पूरा एरिया है, रोड्स है, कहां से वायरिंग हो रही है, वो सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो. आप कंप्लीट एक प्लांट यहां पे सेटअप कर सकते हो. लाइक आपको इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, किसी चीज की मशीनरी सेटअप कर रहे हो तो आप इजीली इसके सॉफ्टवेयर के साथ आपके पूरे प्लांट को डिजाइन कर सकते हो.
प्लान टूल सेट्स के थ्रू। यहाँ पे आप MEP भी कर सकते हो। MEP स्टैंड फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। यू कैन मेक डक्ट्स, you can design electric wiring, you can make pipelines of plumbing in your model, in your buildings and in your house, whatever you are designing. You can make these things very easily with the help of MEP toolset. You can also, it comes with also raster image toolset. You can make anything by tracing any image. You can import the image on the software. You can just trace on the edges of the software, and your object, your design will be created. Now, AutoCAD comes with seamless connections with web and applications. You can connect your software with numerous of web and various types of application. You can enjoy the connected design experience across AutoCAD on virtually any device. You can view, edit, annotate, and create drawings on the go using the AutoCAD mobile application or from your web browser on any computer using the AutoCAD web application. Basically, AutoCAD एक web applications के साथ में आता है और आप आपके सॉफ्टवेयर को कभी भी कहीं पे भी आपके डिजाइन को कनेक्ट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, दिखा सकते हो इनकी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स के थ्रू। और इवन की सिर्फ दिखा ही नहीं सकते, देख नहीं सकते, आप एडिट भी कर सकते हो, एनोटेशन भी कर सकते हो। जो बेसिक, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, आप पूरा सॉफ्टवेयर अपने फोन में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक प्रोसेस है, बेसिक ऑपरेशन है, यू कैन परफॉर्म इट वेरी वेल। Now the question is, who can use it? Who can use it? Who can use AutoCAD software? So if you are an architect, then you can use it. You can use it for creating your floor plans, designing your. You can use it. You can design it for buildings. You can design malls, hospitals, anything you want to design. Then anything that the work related to architects, you can use this. If you are electrical engineer, then you can use it for creating wirings. If you belongs from electronics engineering, you can use this software for making circuit. You can draft any type of circuits. And if you belongs from a plumbing industry, then our HVAC stands for heating, ventilation, and air conditioning. You can create such type of draft by the help of this software. You can interiorly design your model. If you have any room, you design any room, or you model any room, any dining room, anything you model, you can just design it completely. You can make interior designs in this software too. It is also used for industrial engineer. It can be also used with industrial engineers for creating plants. They can design their plants. They can design their industries, and it can be also used for with manufacturing by manufacturing engineers, and it is used by mechanical engineers too for drafting their machines, drafting their mechanical parts, annotating their parts and all. Structural engineers also use this software for creating structures, for designing the beam, modeling the beams, for modeling the foundation and all. Now the question is, what are the benefits of AutoCAD? The first benefit is it has the ability to produce very accurate design. AutoCAD के थ्रू आप बहुत ही ज्यादा accurate design बना सकते हो, क्योंकि AutoCAD आपको 8 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसीजन देता है, ठीक है, जो और कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता। यहाँ पे आप किसी भी यूनिट्स पे काम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो mm है, सेंटीमीटर है, फिट है, आप जिस भी यूनिट्स में आपके पास डायमेंशंस है, आप वो यूज कर सकते हो। इवन कि आपको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोकैड खुद ही उस सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेगा और एकदम एक्यूरेट ड्राइंग आपको बना के देता है। आप आपकी ड्राइंग को 2D एंड 3D किसी भी फॉर्म में बना सकते हो। अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन बी लिंक टू द डिजाइन सॉफ्टवेयर। आप आपके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ या दूसरे एप्लीकेशन के साथ भी लिंक कर सकते हो। इवन कि जब भी आप इंटीरियर डिजाइन करोगे तो आप ऑटोकैड में बनाए हुए मॉडल को या अपने ड्राफ्ट को 3ds मैक्स जैसे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके आप उससे 3D क्रिएट करते हो।
AutoCAD एज एन आर्किटेक्चरल प्लानिंग टूल, ये आर्किटेक्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में, उसको एनालाइज करने में, और इजीली बता देता है कि अगर कोई रूम है तो गैलरी में कितनी जगह बची है, क्या चीज़ हमारे सुटेबल है, क्या चीज़ें सुटेबल नहीं है। हम एग्जैक्ट लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी रूम में एक कॉर्नर पे कुछ बेड रखा है तो साइड में कितनी जगह बचेगी, वगैरह वगैरह। AutoCAD as an engineering drafting tools. It helps engineers to design, analyze, solve design issues resulting to accurate designing. If you are designing something, it simply says that कि अगर आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, आपने कुछ भी डिजाइन किया है, तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता है कुछ ना कुछ एरर ना हो। तो AutoCAD के थ्रू आप उस एरर को 99.9% तक कम कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, उस जो इश्यूज है या जो एरर्स आ रहे हैं उनको इजीली आप सॉल्व आउट कर सकते हो। AutoCAD is also used for 3D printing. A 3D print has its own advantage for designers, and this software helps them. The design can be exported to various preferred formats. आप इसमें काफ़ी सारे फॉर्मेट्स में डिज़ाइन बना के आप जो 3D प्रिंटिंग की अपनी मशीन होती है उसके थ्रू आप आपके मॉडल को 3D प्रिंट करवा सकते हो। AutoCAD इज ऑल्सो यूज इन फैशन इंडस्ट्री। आप इवन की फैशन इंडस्ट्री में भी AutoCAD यूज होता है। आप इसके थ्रू ज्वेलरीज वगैरह डिजाइन कर सकते हो, अपनी शर्ट्स, स्कर्ट्स, जो कुछ भी आपका फैब्रिक है उसे आप डिजाइन कर सकते हो, अलग अलग टाइप के कपड़े डिजाइन कर सकते हो। AutoCAD इज एन इंडस्ट्रियल डिजाइन टूल और एज एन इंडस्ट्रियल डिजाइन टूल, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, आई प्रीवियसली टोल्ड यू दैट इट कैन बी यूज फॉर प्लांट इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग condition. In industrial designing use, it can be used with for industrial designing, and it helps to reduce manufacturing cost, and it saves time and efforts required for manual designing. ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, टाइम्स को बचाता है, और जो आपके एफर्ट्स है मैनुअल डिजाइनिंग में जो एफर्ट्स है उसको भी काफ़ी हद तक कम करता है। आपकी जो डिजाइनिंग एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बना देता है और काफ़ी ज़्यादा हैंडी बना देता है। Now, there are some cons is also available in AutoCAD. हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो फायदे तो हमने देख लिया, अब नुकसान देखते हैं। It can't provide higher quality render image. Yes. अगर आप 3D पे कुछ भी बनाते हो तो 3D पे अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अगर आपने 3D पे बनाया तो आप उसका रेंडर करते ही करते हो, बिना रेंडरिंग के कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो रेंडर करने के बाद हमें एक हाई क्वालिटी इमेज चाहिए होती है, लेकिन AutoCAD की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हाई क्वालिटी रेंडर इमेज दे सके। इसलिए जो 3D मॉडलिंग है वो हमेशा दूसरे सॉफ्टवेयर में की जाती है, लाइक रेविट आर्किटेक्चर हो गया, या फिर 3ds मैक्स हो गया, गूगल स्केचअप हो गया, और या अगर आपको सिर्फ रेंडर से मतलब है तो आप AutoCAD में भी 3D मॉडल बना के किसी दूसरे रेंडरिंग सॉफ्टवेयर लाइक वीरे, लूमियन, कीशॉट, इन सारे सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने मॉडल को आप रेंडर कर सकते हो। Not really suitable for 3D. Yeah, this is right. AutoCAD 3D डिजाइनिंग के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें हमें इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है 3D डिजाइनिंग के लिए। 2D डिजाइनिंग के लिए इससे ज्यादा एक्यूरेट सॉफ्टवेयर और कोई नहीं है, लेकिन 3D के लिए उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं, उतना ज्यादा रिलेबल नहीं है। एक छोटी से छोटी चीज को मॉडल करने के लिए हमें काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है, और काफी सारे टूल्स और कमांड्स यूज करनी पड़ती है। अब आप जितने ज्यादा उसमें एफर्ट डालोगे, जितने ज्यादा टूल्स और जितने ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, आपकी फाइल उतनी ही ज्यादा हैवी होती है, साथ में एरर के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव स्टार्टअप कॉस्ट। AutoCAD फ्री में नहीं मिलता है आपको, इसका अगर आप इसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको इसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जो कि थोड़ा महंगा पड़ जाता है, तो स्टार्टअप के लिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो, या आप ट्रेनर हो, या आप एजुकेटेड हो, तो ऑटोडेस्क नाम की कंपनी सॉफ्टवेयर को बनाया है, और ऑटोडेस्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है 1 साल के लिए। पहले ये 3 साल के लिए करती थी, बट अब इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दिया, अभी आपको सिर्फ 1 ही साल के लिए मिलता है। अगर उसके बाद भी आप स्टूडेंट बने रहते हो तब आपको कोई आपका स्टूडेंट आईडी वगैरह कुछ दिखाना पड़ता है, इन्हें देना पड़ता है, और ये आपको फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से एक्सटेंड कर देते हैं। ऑटोडेस्क अपने सभी अब AutoCAD ही नहीं, मतलब कि ऑटोडेस्क के बने हुए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सबके साथ ये फीचर आपको मिलता है। अगर AutoCAD drafter skills and responsibility, if you are going to work on this field, if you are going to work in industry, and if you are going to be a designing or drafting engineer, then what job responsibility you should pursue?
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फ्लुएंट इन वन और मोर ऑटोडेस्क कैड कंप्यूटर डिजाइन प्रोग्राम। आपको अगर डिजाइनिंग या डिजाइनर या ड्राफ्टर बनना है तो आपको किसी कैड सॉफ्टवेयर कैड प्रोग्राम में आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा। आपको उस सॉफ्टवेयर की इन डेप्थ अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। Create technical schematics and blueprints in the construction structure and products। जो भी आप डिजाइन करो, जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करो, ऑटोकैड लगभग सभी फील्ड्स में यूज होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मैकेनिकल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप सिविल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, या आप फैशन डिजाइन इंडस्ट्री से हो, आप किसी भी फील्ड से हो, आपको उसकी अच्छी खासी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो भी आप बनाने जा रहे हो उसका ब्लूप्रिंट्स आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सको। आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो तो उसका ब्लूप्रिंट्स आपके पास होना चाहिए, उसको ब्लूप्रिंट्स को समझने की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और आपको ये सारी चीजें जो टेक्निकल है या जो उस डिजाइन का ब्लूप्रिंट्स है वो आपको क्रिएट करना आना चाहिए, तभी आप इस सॉफ्टवेयर का इजीली यूज कर सकते हो। आपको मेजरमेंट्स प्रोवाइड करनी होंगी, डायमेंशंस प्रोवाइड करनी होंगी, या जो भी मटेरियल आप बना रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स में उसके रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करना होगा। जो भी आपसे आपका सीनियर होगा, आपको उसके प्रोजेक्ट्स के साथ वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आपको दूसरे एम्प्लॉय को यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद अदर एम्प्लॉयज टू ऑब्टेन टेक्निकल डिटेल्स, ऑप्टिमाइज डिजाइन एंड रिजॉल्व इश्यूज। आपको आपके साथ की कोवर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ताकि आप डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर सको, और जो उसको रियल वर्ल्ड में बनाने के लिए जो भी इश्यूज आ रहा है आप उसको रिजॉल्व कर सको। यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद अदर एम्प्लॉयज टू। You have to write additional instructions and commands and position them into technical drawings and blueprints। जब भी आप उसकी ड्राइंग्स बनाते हो तो उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो सिर्फ डिजाइनर अपने तक ही सीमित रखता है, मतलब कि काफी सारी कंडीशंस ऐसी हो जाती है आप सब कुछ नहीं ड्राइंग में अपने लिख सकते हो, तो वो उसका जो एक नोट है, उसका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, वो आपको प्रोवाइड करनी आनी चाहिए। उसका जो फॉर्मेट है वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ नीड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स टू डील विद अदर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयज। जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम करोगे एज अ डिजाइनर, तो आपको आपसे जो सीनियर है, जिनको अच्छी खासी नॉलेज है इन सारी टेक्निकल चीजों की, उनके साथ भी डील करना पड़ेगा। और जो फेलो वर्कर्स हैं, लाइक अगर आपने कोई बिल्डिंग का प्लान बनाया है, अब वो बिल्डिंग रियल में बनाई जा रही है, आप साइट पे जाते हो, तो जो भी वहां पे वर्कर है, लेबर है, ठीक है, उसे इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयज दोनों के साथ आप कम्युनिकेट कर सको इजीली। द बेस्ट ऑटोकैड ड्राफ्टर्स आर क्रिएटिव थिंकर एंड एन इनग्रेन्ड क्यूरियोसिटी फॉर हाउ थिंग्स वर्क। अगर आप एक डिजाइनर या ड्राफ्टर बनना चाहते हो, तो किसी भी सॉफ्टवेयर की नॉलेज होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना ज्यादा क्रिएटिव हो, आपकी इमेजिनेशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। जितना अच्छा आप इमेजिन कर सकते हो, आप उतना ही अच्छा डिजाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट बी अ गुड इमेजिनर। First, you have to design any object or any blueprint in your mind. Then you can design it on the software. Now, you guys might be thinking that what is the pay scale of AutoCAD designer? AutoCAD designer की pay scale क्या होती है? तो एक ये सिंपल ग्राफ है जो naukri.com के थ्रू हमें मिला था, ठीक है। इसमें मेंशन्ड है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 1 या 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है, देन आपकी जो एनुअल पैकेज होगा, आपका जो एनुअल पैकेज होगा वो होगा लगभग 2,48,000 ये होगा। अगर आपको 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लगभग इतना तक अर्न कर सकते हो पर एनम। इफ यू हैव एक्सपीरियंस देन अप टू 5 to 9 years देन यू कैन अर्न दिस अमाउंट, एंड इफ यू हैव more experience more than 10 years then you can earn up to 5 lakh per annum, and if you have knowledge of 20 years then you can earn this amount. But all depends upon how much you are experienced in this software, how much is your technical knowledge. It is not एग्जैक्टली ट्रू। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही आपको मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि अगर आप 1 साल में ही उस लेवल की नॉलेज आप गेन कर लेते हो, आपको उतना एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप ये अमाउंट पहले या 1-2 साल के बाद भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी पहुंच कहां तक जाती है, आपकी नॉलेज कैसी है, और आपका इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको 2.5 लाख से 2.5-3 लाख का ही पैकेज मिलेगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कैसी है, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है।
और आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव थिंकर हो, कितनी ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है, आपकी डिजाइनिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा हैं, और साथ साथ में आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या है और आपकी सॉफ्टवेयर पे कमांड क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नाउ द थिंग इज व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स। अगर आप ऑटोकैड ड्राफ्टर बनना चाहते हो तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, आपको कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तो फर्स्ट थिंग कि यू हैव टू बी अ कंप्यूटर, यू मस्ट हैव अ कंप्यूटर सिस्टम विथ मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है जो अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं होंगी तो वो हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो आपके पास एक मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन का एक सिस्टम होना चाहिए। लाइक आई थिंक आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन है ऑटोकैड का 2022 है, जो अप्रैल में ही उसका अपडेट आया है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो आपको i3 का प्रोसेसर होना चाहिए विथ थर्ड और फिफ्थ जनरेशन रिक्वायर्ड है, और मिनिमम 4 GB की रैम ज़रूरी है। अगर 8 GB की होती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, और अगर एक ग्राफिक कार्ड भी है 1 या 2 GB का देन ये और भी बेहतर है। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, और आपको थोड़ी बहुत अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी नॉलेज है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडिशनल पॉइंट होगा। पर अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो और वर्क भी कर सकते हो इसमें मोर एफिशिएंटली, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप ट्रेनिंग टाइम पे वैसे भी आपको ये सारी चीज़ें बताई ही जाएंगी। और दूसरी चीज ऑब्वियसली कोई ऑटोकैड का कोई ना कोई वर्जन आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, जो इस टाइम पे लेटेस्ट चल रहा है वो 2022 चल रहा है, जो अभी अप्रैल 21 में रिलीज हुआ है। ठीक है, नाउ आई थिंक you all have know what is you guys must get the information that what AutoCAD is. Now the thing is, you can subscribe our channel. If you have any doubt then you can write in on the comment. I will answer that question as soon as possible. And you can subscribe the channel, because if you subscribe our channel then you will get entire knowledge of other technologies too. We are going to upload videos on a daily or weekly basis on other softwares, other technologies regularly. हम हमारे यहाँ डेली सेमिनार्स और वेबिनार्स भी होते रहते हैं, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकोगे, जो हम डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि हम लोग हर सॉफ्टवेयर पे जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, जो ट्रिक्स होती हैं, वो भी अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको आगे आने वाले फ्यूचर में सॉफ्टवेयर पे और भी ज़्यादा आपकी कमांड मजबूत होगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इफ़ यू गाइस वांट टू कनेक्ट विथ अस देन फील free to get in touch with us. You can visit our website, which is asic.com. You can connect with our social handles. We are in Instagram and Facebook. You can also write us mail on this mail ID, info@asic.com. And if you guys want to directly connect with us, then you can call us on this number. So hope you enjoyed the video. Bye bye, take care.